Hello student, we are discuss here the chapter number 14 of class 8. The name of this chapter, chemical effect of electric current. So in this chapter, firstly we will be discuss what are the meaning of its chemical effect of electric current, and then we will be discuss some application of the chemical effect. So before explaining the name of this chapter, I will be just give you the some example. I hope you all know that there are so many substances which can easily conduct the electricity, like the iron, copper, aluminum. Okay, so there are so many substances which can easily conduct the electricity, and they will be known as the conductor. Conductor are those substances which can easily pass the electricity. And similarly, there are so many substances which do not pass the electricity. I hope you also know that, like the paper, clothes, plastics. Okay, so many substances that will be known the poor conductor. Okay, or insulator. So you have to remember we are classifying all the substance on the basis of one properties, और वो properties क्या है कि ability electricity को pass करने की. अगर ऐसी ability है किसी metal के अंदर किसी भी substance में, उसको हम बोलेंगे conductors, और we can also say the good conductor. और जो सब्सटेंस हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की एबिलिटी नहीं रखती, दे विल बी नोन द पुअर conductor, or we can also say that the insulator. Okay, I hope you get the meaning of that. Some solid substance can easily pass, but this chapter will be going to discuss in the liquid. Does liquid conduct the electricity? If you will be see here, there is a topic is given in the red. Does liquid or do liquid conduct the electricity? Yes, you will be see here. There are some liquids which can easily conduct the electricity. So you have to remember when we talk about the solid, so we classify them into the conductor and insulator. Insulator on the basis of the property of pass the electricity. But when we talk about the liquid, so we will call them by the different name. ये सॉलिड के केस में, सॉलिड में कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे. बट इन द केस ऑफ द लिक्विड, अगर ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, दैट विल बी नोन द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट, और वी कैन ऑल्सो से दैट द गुड इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं. Good or strong electrolytes. But those liquid which will not pass the electricity, they will be known the poor electrolytes. Poor electrolytes. So simple meaning है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे वही होते हैं जैसे हमारे कंडक्टर्स होते हैं. कंडक्टर्स नाम सॉलिड के लिए है, इलेक्ट्रोलाइट्स नाम लिक्विड के लिए है. आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ दैट. Now student, we will be see what are the difference and what exactly happen when the current pass through them. Current, you have to remember electric current is a kind of the charge. ये एक चार्ज होता है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करता है. सो इट इज अ चार्ज व्हेन इट विल बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द सॉलिड. अगर सपोज करो मैंने एक यहाँ पर सॉलिड का आयरन की रॉड बना दी, ठीक है, सपोज करो ये आयरन की रॉड है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास कराई. ये हमारा करंट आएगा, ये कुछ चार्ज है और वो इस आयरन रोड से पास होगा और यहाँ से करंट निकल जाएगा. सो यू विल बी सी देयर नॉट एनी चेंज विल बी अकर ऑब्जर्व. जो हमारी आयरन रोड है यहाँ पर कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा. जैसी आयरन रोड थी वैसी रहेगी, करंट आया चला गया. बट इन द केस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता है. सपोज करो ये हमारा एक लिक्विड से और इसके अंदर कोई भी हमने लिक्विड सब्सटेंस फिल कर रखा है, ये बीकर है और यहाँ हमने लिक्विड सब्सटेंस को फिल करा है. सो यू हैव टू रिमेंबर
इफ वी विल पास द इलेक्ट्रिसिटी, यहां से हमने करंट को पास कराया, ये कोई हमने एक इलेक्ट्रोड रख दी, ये भी हमारे पास दूसरी इलेक्ट्रोड है, और यहां से ये करंट चला गया, ये करंट आया इलेक्ट्रिसिटी, यहां से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ओके, सो इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू दिस लिक्विड, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, सो इसका मीनिंग यहां पर कुछ ना कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा। वी विल बी सी ए काइंड ऑफ द चेंज इन इट। और वो चेंज कैसा हो सकता है? वो चेंज या तो ये जो लिक्विड से ब्रेक हो सकता है, या फिर वो एसोसिएट हो सकता है, या इसके जो आयंस हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, या तो ब्रेक होंगे या फिर वो जुड़ जाएंगे। सो देयर वन थिंग वी ऑब्जर्व, एक चीज हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम सॉलिड की बात करें, जैसे हमने आयरन रॉड का एग्जांपल लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास थ्रू द, जो इनके एटम्स हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, एंड थ्रू द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे एटम्स के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। और कैसे पास करेंगे? सपोज करो जो चार्ज है वो पहले एटम्स पे आया, वो पहला एटम्स दूसरे को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करेगा, तीसरा चौथे को ट्रांसफर करेगा, इसी तरह से एंड तक वो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। बट इन द केस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में जो यहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, और आयंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो चार्ज को कैरी करेगा। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स में से करंट आया, तो इसके पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन, जो आयंस प्रेजेंट है, वो चार्ज को कैरी करेंगे और वो दूसरे इलेक्ट्रोड तक लेके जाएंगे। तो समझ में आया? तो यहाँ पर चार्ज कैसे कैरी हो रहा है? आयंस के थ्रू कैरी हो रहा है। आयंस की मोबिलिटी है, एक आयंस चार्ज को लेगा और वो दूसरी जगह छोड़कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ आयंस हमें देखने को मिली। सो दिस काइंड ऑफ द चेंज वी जनरली ऑब्जर्व इन द लिक्विड। तो यहाँ पर क्या एक तरह से चेंज हमें देखने को मिलेगा। ओके, वी विल बी डिस्कस अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड, कि लिक्विड में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो कौन कौन से चेंज हमें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ इट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कस कि कौन कौन से हमारे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं।